Sai Ram children. Saira ma'am. Saira ma'am. Yes. Saira ma'am. Yes. Still now, many of you have not joined. May I know the reason? आज कुछ स्पेशल है क्या? Saira ma'am. हाँ, आज कुछ स्पेशल है? No ma'am. बी सेक्शन के बच्चे क्यों नहीं ज्वाइन हुए हो? Only one I can see, I think. Rest are all from A section. Ma'am Two इधर are भी here. है. Ma'am, Aditya. Ramesh. Okay. Anyways, so as you have seen in the invitation, today we are going to do chapter number 10. We are going to read it and I'm going to explain. You already know, I don't have to explain to you much. और उसके बाद थोड़ा सा टाइम बच जाएगा तो वी विल डू सम रीडिंग का एग्जाम. First, let us start. Without wasting time, we will start. Ma'am, this chapter is very nice. Yes, this chapter is very nice and we are going to do. I hope you know what chapter we are going to do. Who will be the Ningto? Who Yes. will be the Ningpo? Who will be Yes. the Ningpo? Yes, just a minute. I will share my screen with you. Sai Ram, everyone. Try to be on time. Yes, I know weekend, lot of fun. बहुत नींद आती है. But you know, teachers are also coming and in time. तो आप क्यों नहीं आ सकते? आप तो घर पे बैठे हो. Yes, ma'am. Teachers भी time पे ही आते हैं. Yes, कभी लेट नहीं करते. Okay, let us start. Who will be the Ningthoi? Who will be Ningthoi? And I am going to read. I will not ask you for reading now because I will assume. मैं ऐसे इमेजिन करूंगी कि आप लोग रीडिंग कर रहे हो घर पे और उसी हिसाब से आपको मार्क्स भी मिल रहे हैं ऑलरेडी. ओके, सो आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम बिहाइंड यू गिविंग रीडिंग. यू रीड एट होम. आई विल एक्सप्लेन टू यू. एक बार मैं रीड कर लूंगी, रीड करते करते एक्सप्लेन करूंगी और वर्ड मीनिंग्स भी बता दूंगी. इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स जैसे आपने मालू भालू का लिखा था वैसे आपको लिखनी पड़ेगी. एंड यू आर गोइंग टू शो इट टू मी. Yes. Can you see the screen, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We can see your. Ma'am, we can see the screen. Okay, fine. Who will be Ningtho? Unit 10. Now you already know this is a tale about Manipur. मणिपुर का कंगलीपाक नाम का एक जगह है. वहाँ पे एक फोकलोर है. ये व्हाट इज अ फोकलोर? यानी जो ट्रेडिशनल जो टेल्स रहते हैं, जो कहानियाँ रहती है एक जगह की, वहाँ की एक फोकलोर है ये. इट इज अबाउट मणिपुर. लेट अस सी. Traditional tales or stories about like. Yes. And am I audible to you? Can Yes, you ma'am. hear You me? are Yes, very ma'am. Yes, ma'am, audible. you are audible to me. Yes, ma'am, you are Fine. audible. Fine. So Yes, let us ma'am. start. What do you want? A king is called a Ningtho and a queen is called a Lima in Manipur. This is a story from Manipur about what qualities make a good ruler. Very important here. King in Manipur is called Ningthao and queen is called a Lima in Manipuri language. This is a story from Manipur that tells us what qualities make a good ruler. This is very important. What is this story about if I ask? This is about what qualities make a good ruler. यानी यहाँ पे कहानी में क्या है? गुड रूलर या गुड राजा या गुड रानी बनने के लिए, अच्छी राजा अच्छी रानी बनने के लिए
क्या क्या क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है वो बताती है ये लेसन. नाउ लेट अस सी. Long, long ago, in the land of Kanglepak in Manipur, there lived a Ninghao and a Lima. They were loved dearly by the people. Okay? Long, long ago, बहुत दिन पहले की बात है. कंगलीपक नाम की जगह में मणिपुर, जो कि मणिपुर में है, वहाँ पे एक राजा और एक रानी रहते थे. निंगथाओ राजा, लीमा रानी रहती थी. एंड दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपल, यानी उनके जो प्रजा थे, उनके जो लोग थे, कॉमन पीपल, उनको बहुत प्यार करते थे राजा रानी को, क्योंकि वो बहुत केयर करते थे सबकी. The Ningtho and Lima, on their part, never stopped thinking about their Niam, their people. Our Niam should be happy, they said. यानी निंगथो हमेशा उनके पीपल की, यानी नियम यानी उनके लैंग्वेज में, मणिपुरी लैंग्वेज में आर पीपल यानी प्रजा, तो वो हमेशा क्या सोचते थे कि हमारे प्रजा हमेशा खुश रहना चाहिए. दे ऑलवेज शुड बी हैप्पी. The people were not the only ones who loved their Ningtho and Lima. The birds, the animals too loved them. The Ningtho and Lima always said, everybody in Kanglepak should live in peace. Not only the people, but the birds, animals and trees. Okay? तो उनको सिर्फ इंसानी प्यार नहीं करते थे, उनको सारे जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे सब प्यार करते थे उनको. और क्योंकि वो भी सबको प्यार करते थे और वो कहते थे कि सब अच्छे से रहना चाहिए, सिर्फ इंसान ही नहीं लेकिन बर्ड्स, एनिमल्स और ट्रीज भी हमेशा अच्छे रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए. तो दे वर सम पीपल हु वर वेरी क्लोज टू नेचर एंड दे लव्ड नेचर, यानी वो प्रकृति के बहुत पास थे और प्रकृति से बहुत प्यार भी करते थे. ऐसे लोग थे. दे वर नेचर लविंग पीपल. Their beloved king and queen had 3 sons, Sanajaoba, Sanayama and Sanatomba. यानी उनके 3 बेटे थे, सनाजाओबा, सनायामा एंड सनाटोम्बा. और 12 साल बाद, आफ्टर 12 years, a daughter was born. 12 साल बाद यानी 12 वर्ष छोटी थी उनसे उनकी बहन हुई. उसका नाम क्या था? सनाटोम्बी. She was a lovely child, soft and beautiful inside. She was loved by one and all. यानी सब उससे प्यार करते थे. एक मिनट. तो सब उससे प्यार करते थे और सब क्योंकि वो बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी और सबसे वो भी बहुत प्यार करती थी. The years went by and the children grew up well. And then one day the Ningthao called all his ministers and said, "It is now time to decide the Tungli Ningthao, the future king." तो दिन वक्त बीतता गया और बच्चे बड़े होते गए और बहुत अच्छे बने सारे बच्चे. और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने बोला कि अभी मिनिस्टर्स को बुलाया, यानी मंत्रियों को बुलाया राजा ने, और उनको बताया कि अभी फ्यूचर किंग यानी टुंगी निंगथाओ, जो भविष्य में जो राजा बनेगा, यानी मेरे बाद जो राजा बनेगा, वो चुनने का अभी वक्त आ गया है. The ministers were shocked. But oh Ningthao, what is there to decide? Sanajaoba, your eldest son, will be our future king. तो मिनिस्टर्स सारे बहुत शॉक्ड हो गए, क्योंकि ये एक प्रथा थी. ऑलवेज दिस इज द नेचुरल रूल कि जो राजा रहते हैं उनके जो बड़े बेटे होते हैं, बड़े बेटे को ही हमेशा थ्रोन मिलता है, यानी राजपाट मिलता है उनको ही. दिस इज बाय डिफॉल्ट. बाय डिफॉल्ट यानी हमेशा ऐसा ही होता रहा है और हमेशा ऐसा ही होता है. लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ राजा ऐसे होते हैं जो बड़े बेटे को या बड़े बेटी को या जो भी होता है सबसे एल्डेस्ट, उनको नहीं देते. उनके हिसाब से जो सबसे सूटेबल है उन्हीं को दे जाते हैं. ये एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन द किंग, यानी राजा पर डिपेंड करता है कि वो किसको अपना फ्यूचर थ्रोन देने वाला है, यानी राजपाट साम्राज्य किसको देके जाएगा.
तो सबने मिनिस्टर्स ने बोला कि यहाँ पर तो कुछ डिसाइड करने का है ही नहीं, आपके जो बड़े बेटे हैं सना जाओबा उन्हीं को मिलेगा क्योंकि वो बड़े बेटे हैं। लेकिन निंगथौ ने क्या कहा? Well, the Ningthor replied, that's how it happened in old days. The eldest son always became the king. But times have changed, so let us select a king who is most worthy of becoming a king. यानी निंगथौ ने क्या कहा? हाँ, वैसा होता था कि हमेशा बड़े बेटे को ही मिलता था राजपाट साम्राज्य, लेकिन वो पुराने दिनों में, पुराने जमाने में होता था। अभी क्या होगा? मेरा साम्राज्य उसी को मिलेगा जो सबसे ज्यादा केपेबल होगा, यानी हु विल बी द मोस्ट डिजर्विंग, जो सबसे सुटेबल होगा, जो इसके लायक होगा, उसी को मिलेगा। We will have a contest to select the future king, the Lima said. And so, in the land of Kamlibak, there was a contest, a horse race. Whoever reached the Hongnang, the banyan tree first, would be declared Tungi Ningthau. यानी एक कॉन्टेस्ट होने वाला था। लीमा ने बताया, रानी ने बताया कि हम एक कॉन्टेस्ट के द्वारा इसको डिसाइड करेंगे। कॉन्टेस्ट में क्या होगा? तीनों, यानी जो राजा बनने वाले हैं तीनों हॉर्स पर, यानी हॉर्स बैक पर घोड़े पे सवार होके वो बैनियन ट्री जो कि कुछ दूर था वहां तक जाएंगे, और जो सबसे फर्स्ट होगा उसी को मिलेगा ट्रोन। Okay, but there was a strange thing happened. Sana Jaoba, Sana Yaima, and Sana Tomba, all three of them finished the race together. They were expert riders, and all three reached the finish line at the same time. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो गया कि वो बैनियन ट्री यानी बरगद के पेड़ पहुंचते पहुंचते घोड़े पर तीनों बेटे एक साथ फिनिश लाइन पे पहुंचे। अब अगर एक साथ में पहुंचे तो ये डिसाइड नहीं हो पाया कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, तो राजा कौन बनेगा इसको डिसाइड कैसे करें, क्योंकि तीनों एक साथ फिनिश लाइन पे पहुंचे। नेक्स्ट, देयर वाज ग्रेट एक्साइटमेंट, लुक एट देम, द पीपल शाउटेड, Shagol Tauba Nupa, such fine horsemen. But one question remained, who would be Tungi Ningthau? और इन सबको देख के इतने अच्छे से वो लोग घोड़सवार थे, इतने अच्छे से उन्होंने सवारी की, रेस लगाई कि सब बहुत एक्साइटमेंट से भर गए और सब प्रेस करने लगे कि देखो कितने अच्छे हॉर्समैन हैं। लेकिन उनका वो क्वेश्चन तो सुलझा ही नहीं कि राजा कौन बनेगा, फ्यूचर किंग कौन बनेगा। The Ningthau and Lima turned to their sons. The Ningthau said, Sana Jauba, Sana Yama, and Sana Domba, you have proved that you are fine horsemen. Do something different, each one of you, so that we can decide who will be Tungi Ningthau. कह रहे निंगथौ और लीमा ने, राजा रानी ने उनके बेटे से क्या कहा? हाँ, आपने बहुत अच्छी सवारी की और आप तीनों ने दिखा दिया कि आप बहुत अच्छे घोड़सवार हैं, बहुत अच्छे हॉर्समैन हैं, लेकिन आप लोग कुछ और करो, कुछ डिफरेंट करो, कुछ अलग करो, जिससे हम ये डिसाइड कर पाए कि आप में से बेस्ट कौन है और किसको फ्यूचर किंग बनाया जाए। फिर क्या हुआ? सडनली Sana Jauba mounted on his horse and held his spear straight in front of him. He looked around. There was a hush among people. What is Sana Jauba, the eldest, going to do? They thought to themselves. यानी सडनली जो सना जाओबा, जो सबसे बड़े बेटे थे, उन्होंने क्या कहा ये सुनने के बाद कि अलग कुछ करो, ये सुनने के बाद अचानक वो अपने घोड़े पे बैठ गया, माउंटेड ऑन हिज हॉर्स, यानी घोड़े पर बैठ गया। घोड़े पर बैठ के he took the spear straight in front of him. स्पीयर का मतलब क्या है? भाला, जो फेंक के मारते हैं ना, ऐसे लंबे से होते हैं जो फेंक के मारते हैं, फाइटिंग के काम में आता है या स्पोर्ट्स के काम में आता है भाला, स्पीयर।
वो लेके अपने साथ आसपास देख के वो भला हाथ में उठा लिया उसने। और सारे लोग अचानक से जो बहुत चीख चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे प्रेज में, तो वो अचानक से चुप हो गए। यानी वो अभी देखने वाले थे, वो मतलब वो बहुत सरप्राइज्ड हो गए कि क्या होने वाला है अभी, और चुप कर गए। Sana Xiaoba then looked at the huge Hong Nang standing majestically in the distance. He pierced the tree and jumped his horse right through it. तो सना जाओबे ने क्या किया, वो भाला लेके आगे आगे दौड़ने लगा घोड़े के पीठ पे, और घोड़ा दौड़ने लगा। और जब भी वो बरगद के पेड़ के सामने आया, बैनियन ट्री के सामने आया, तो क्या किया, वो भाला जो है वो बैनियन ट्री में फंसा दिया, और फंसाने के बाद घोड़ा लेके उसके ऊपर से कूद गया। तो ये जिम्नास्टिक उसने वहां पे दिखाया। उन्होंने सोचा कि बहुत ब्रेव काम किया, उन्होंने वो भाला फंसा दिया और ऊपर से जंप कर दिया। Bravo, bravo, the people shouted, Thoro, Thoro, and they then fell silent. तो बहुत वो लोग चीखे चिल्लाए और फिर चुप हो गए, क्योंकि दूसरा बेटा आने वाला था। Are you getting what I am explaining? मैं बहुत जल्दी तो नहीं Yes, एक्सप्लेन ma'am. कर रही हूँ। Yes. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. तो समझ आ Ma'am, रही you explained clearly. No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. हम आप आराम से बोल रहे हैं, समझ Okay. आ रहा है। Okay. So shall I continue? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. अभी Okay. Yes, ma'am. Okay. Follow. Now it was the turn of the second son, Sanayama. What would he do? Sanayama too looked at the Khongnan as he mounted his horse. Then he too rode towards the tree harder and harder. The people watched in silence, afraid even to breathe. When they were really close, he urged the horse to jump. Higher and higher the horse rode, until the horse and the rider jumped clear over the huge tree and landed on the other side in a wonderful motion. Okay? तो पीपल, सारे लोग, जनता जो है वो सारे चुप हो गए थे, क्योंकि उनको देखना था कि सनायाइमा यानी सेकंड सन क्या करता है, क्या स्पेशल करता है। तो उन्होंने क्या किया, वो भागते गए घोड़े पर बहुत जल्दी जल्दी, और उन्होंने क्या किया, थोड़े दूर से ही अपने घोड़े को उसने पुश किया और उसको ऐसे जंप करने के लिए कहा। और सबने क्या देखा कि पूरे जो बरगद का पेड़ यानी बहुत ऊंचा था, लेकिन उसने क्या किया, घोड़े को ऐसे ट्रेन किया और ऐसे जंप करवाया कि पूरे ट्री के ऊपर से ही जंप ओवर द ट्री, और ट्री के कुछ हिस्सों को भी टच नहीं किया, और ट्री के ऊपर से जंप करके निकल गया। और पूरे जो एक्ट था वो बहुत सुंदर लगा देखने में, और बहुत अच्छे से, बहुत सफाई से उन्होंने ये एक्ट पूरा किया। द पीपल, और पीपल ऐसे मतलब हैरान होके देख रहे थे कि वो सांस लेना भी भूल गए। जैसे हम बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सा देखते हैं, एक पल के लिए हमारी सांसें रुक जाती है और हम ऐसे सांस लेना भी भूल जाते हैं और वेट करते हैं ये होने का। तो वैसे ही पीपल अपने सांसों को रोक के ऐसे देख रहे थे। The people breathed in relief and said in unison, "Fajay, Fajay, wonderful, wonderful." तो जब वो जंप करके दूसरी ओर पहुंचा, तब उनको आराम मिला लोगों को, और तब वो एक आराम की सांस ली सबने, और सबने कहा वंडरफुल वंडरफुल, फाजे फाजे। ये मणिपुरी लैंग्वेज है, और सबने एक साथ बोला कि वंडरफुल, बहुत प्रेज करे सबने। And now it was the turn of the youngest son, Sanatomba. He too rode the horse towards the Kongnai, and therefore anybody knew what was happening uprooted it. Triumphantly, he carried the tree to the Ningtho and Lima
and laid it at their feet. तो सबको अलग अलग कुछ करना था, तो एक ने क्या किया, उसको भाला फेंक दिया, उसको ऊपर से कूद गया। दूसरे ने क्या किया, ऊपर से ही कूद गया पूरा। और थर्ड ने क्या किया, उसको अलग कुछ करना था। व्हाट डिड ही डू? ही just a minute, children. Children, just a minute. Give me 2 minutes. कुछ emergency काम आ गया है. For 2 minutes, you keep waiting. Of course, ma'am. Do not waste your time. Please keep waiting. Yes. Of course, ma'am. Of course, ma'am. Of course, ma'am. Sairam, ma'am. Sai Ram, ma'am. Hi. Sarah, ma'am. Yes, Sairam. Yes, I'm back. Sarah. Sorry Yes, for ma'am. keeping you waiting. Yes, we will continue. Huh. Yes. Now, what did Sanatomba do? Excuse me. What exceptional did he do? अलग क्या किया उसने? वो हॉर्स बैक पे भागते हुए गया एंड जब भी वो फॉन्गलैंड के पास पहुंचा यानी बैनियन ट्री बरगद का पेड़ के सामने पहुंचा तो उसने क्या किया? बिफोर एनीवन कुड अंडरस्टैंड कुछ समझ पाए उसने क्या किया? और जब भी आए तो उन्होंने क्या किया? वो बरगद के पेड़ को पकड़ा उसने और बहुत उसमें शक्ति थी और उसको पूरा उखाड़ के ले गया।
बरगद के पेड़ को ही उखाड़ लिया, एक ने उस पे भाला मार दिया, एक ने उसके ऊपर से छलांग लगा दी और तीसरे ने क्या किया, उसी को उठा के लेकर आए। और जैसे कि वो जीत गया, रेस जीत गया, ऐसे किसी ट्रॉफी के तरह ट्रायम्फेंटली, यानी जो विजेता होता है वो जैसे हाथ ऊपर करके ले आते कोई ट्रॉफी, तो कोई ट्रॉफी कोई मेडल की तरह उसको उठा के ले आया और मम्मी पापा के सामने यानी राजा और रानी के सामने, निंगथौ लीमा के सामने उनके पैरों पर वो रख दिया। Shouts of Thoro, Thoro, Faje, Faje fill the mountains, यानी सब बहुत अच्छे, वंडरफुल वंडरफुल ये चिल्लाने लगे। सबको बड़ा मजा आया कि उसने ये ब्रेवरी का काम किया है। The people grew restless. Why were the Ningthau and Lema taking so long for the announcement? यानी जो जनता थे वो बहुत इम्पेशेंट होने लगे, उनको बहुत मतलब चिंता होने लगी कि इतनी देर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत आसान है, कौन होगा निंगथौ, तो इतना देर क्यों लगा रहे हैं निंगथौ और लीमा डिसाइड करने में। They craned their necks to see what was happening. Craned यानी जो बगुला होता है ना, उनके गले जैसे ऐसे ऐसे करके हिलाते हैं, तो वैसे ही क्राउड में से पीपल, जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, हम ऐसे 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 गर्दन को हिलाते हैं ना, वी क्रेन आवर नेक्स, दैट इज कॉल्ड क्रेनिंग द नेक, यानी बगुला जैसा करता है वैसे ही हम ऐसे गले को इधर उधर करके हम देखने की कोशिश करते हैं भीड़ में से कि सामने क्या हो रहा है। मैम झांकने की। नॉट एग्जैक्टली झांकने की, बट देखने की। झांकना मतलब आप वैसे हाइड करके देख रहे हो, नॉट एग्जैक्टली दैट, बट दे वांट टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन। यस, ओके मैम। यस, ओके the मैम। Ningthau and Lima were watching Sana Tombi, their 5-year-old daughter. She looked sad and lonely. She stared at the Kongnang, which lay dead by the throne. Birds flapped worriedly around, searching for their homes in the tree. Sana Tombi walked up to the Kongnang and whispered, "The Kongnang is dead. It was hurt by the spear and now it is dead." तो निंगथौ और लीमा टाइम क्यों लगा रहे थे? क्योंकि वो अपने 5 वर्षीय बच्ची को देख रहे थे, जो कि 5 इयर्स की थी, छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी, लेकिन वो बहुत समझदार थी। उसने क्या किया, वो बहुत सैड दिख रही थी, बहुत दुखी दिख रही थी। और क्यों? क्योंकि उसको बड़ा दुख हुआ वो पेड़ के लिए, बरगद के पेड़ के लिए, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि अपना कोई सगा मर गया है। वो बहुत दुखी हुई और उसने क्या किया, बर्ड के मतलब वो प्लांट के पास, ट्री के पास गया, जो कि उनके थ्रोन के पास, राजा रानी के सिंहासन के पास उसने रख दिया था सना टोम्बा ने। और वो वहां पर गई और उसको ऐसे प्यार से हाथ फिरोया और वो उसके कान में जैसे बोल रही थी वैसे विस्पर करने लगी, यानी कान में बोल रही थी कि अब ये पेड़ को किसी ने नुकसान पहुंचाया, भाला से मारा, स्पीयर से इसको प्रिक किया और अभी तो इसको मार ही डाला। और आसपास में ये जो बर्ड्स, आप पिक्चर में भी देखो, बर्ड्स भी बहुत रो रहे थे, उनको भी चिंता हो रही थी, क्योंकि उनका घर टूट, यस, क्योंकि उनका घर था, उनका घोंसला था इस ट्री में, और अगर इसको उखाड़ लिया तो उनका घर भी गया, टूट गया, और वो भी बहुत परेशान थे। सना टोम्बी बहुत दुखी थी, जैसे उनका कोई सगा कोई मर गया है, और वो बहुत रो रही थी उसके पास। द पीपल वर ऑल अटेंशन, यानी लोग जो थे वो एकदम से खड़े हो गए अटेंशन पोजीशन में। The Ningthau stood up. He looked at the 3 boys. He looked at his little girl. He turned to the people. "If anybody is worthy of becoming the ruler," he said, "it is little Sana Tombi. It was she who told us to look at the soul of the Kongnang." अब पीपल क्या है, वेट कर रहे थे कि किसको अनाउंस करेंगे राजा। तो राजा उठे, निंगथौ स्टूड अप, और उन्होंने अपने 3 बच्चों की तरफ देखा और फिर अपनी बच्ची की तरफ देखा और अपनी जनता को यानी अपनी प्रजा को उन्होंने अनाउंस किया
कि अगर कोई वर्दी है, अगर कोई लायक है किंग, नेक्स्ट किंग या क्वीन बनने के लिए, तो वो सानाटोम्बी है, क्योंकि उसने हमारे दृष्टि आकर्षित किया ये बरगद के पेड़ की तरफ और उसकी आत्मा की तरफ। क्यों? Sanatombi feels the pain of others. She feels the pain of people, the animals and birds and trees. Remember, वो कांगलेपक में क्या होता है? निंथो और लीमा सबके बारे में सोचते हैं, सिर्फ इंसान नहीं, प्रकृति के बारे में, पेड़ पौधों के Yes, बारे में, ma'am. जानवर के बारे में, सबके बारे में फील करते हैं। तो ऑब्वियसली वो ऐसा चाहेंगे कि अपना फ्यूचर जो राजा है, फ्यूचर जो सिंहासन संभाले, वो भी ऐसा ही हो। तो उनको अपना लायक जो वारिस है उनको मिल गया सानाटोम्बी में, क्योंकि सानाटोम्बी ने इतना कुछ ब्रेवरी नहीं दिखाया, वो हॉर्सबैक पे नहीं चढ़ी और ये भाले से भी नहीं हर्ट किया, लेकिन उसने क्या क्वालिटीज दिखाई? उसने ये पेड़ के लिए फील किया और वो दुखी थी, ये पेड़ के लिए, फिर बर्ड्स के लिए जिनका घर टूट गया, यानी वो दूसरों के लिए फील करती थी, दूसरों की जो व्यथा है, दूसरों की जो फीलिंग्स है, उनकी कदर करती थी, उनके लिए फील करती थी। तो कांगलेपक का राजा या रानी जो होगी उसमें ये क्वालिटीज भरपूर होनी चाहिए। तो इसीलिए सानाटोम्बी सबसे लायक है अगली रानी बनने के लिए। I declare Sanatombi the future Lima of Kanglepak, the Ningthao said. A silence fell. Everyone turned to look at the little girl, their future queen. There she stood, all of 5, like a small cognac, with birds flying all around her. They sat on her shoulder and on her head. She held out her hands full of grain, and the birds flapped around her, pecking at the food. A lama is one who doesn't hurt anybody in the kingdom. तो क्या हुआ? निंगथो ने अनाउंस किया कि आई डिक्लेयर सानाटोम्बी एज द फ्यूचर लीमा ऑफ कांगलेपा, यानी मैं घोषित करता हूँ कि सानाटोम्बी अगली रानी बनेगी कांगलेपक का। और फिर क्या हो गया? सब जो बात कर रहे थे आपस में वो एकदम से चुप हो गए, जैसे डेड साइलेंट हो गए, यानी इतने मतलब अचानक इतने शॉक हो गए कि वो बोलना भी भूल गए और पूरा एकदम, ये होता है ना जब हम बहुत शॉक हो जाते, एकदम सन्नाटा हो जाता है, चुप हो जाते सब, वैसा हो गया। फिर क्या हुआ? सब देखने लगे ये छोटी सानाटोम्बी को। तो सानाटोम्बी खड़ी थी वहां पे और सब इसको देखने लगे, क्योंकि ये सिर्फ मैं 5 इयर्स की थी, छोटी सी बच्ची थी और वो यहाँ पे खड़ी थी एक कॉन्गनैन की तरह, यानी एक बरगद के पेड़, बैनियन ट्री की तरह मजबूत होके खड़ी थी। और फिर क्या किया था? उसने अपने हाथों में कुछ दाने लिए बर्ड्स के लिए और ऐसे दोनों हाथों को स्प्रेड करके ऐसे खड़े थे। और क्या हो गया? जो बर्ड्स दुखी थे वो बर्ड्स आके दाना चुगने लगे और उसके हाथों पर बैठ गए, उसके सर पे बैठ गए और उसी को जैसे बैनियन ट्री मान लिया और उस पे बैठ गए ऐसे। She held out her hands full of grain and the birds flapped about pecking at the food. यानी उसने अपने हाथ ऐसे स्ट्रेच कर दिए और खाना दाने को लेकर ये खड़ी थी और चिड़िया जो है दाना चुगने लगे और इस पे बैठ गए। और फिर क्या कहा उन्होंने? Lema is one who doesn't hurt anybody in the kingdom. यानी जो पूरे राज्य है उसमें से राजा या रानी ऐसे होने चाहिए जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए और जो सबकी कदर करे और सबकी देखभाल करे, सबसे प्यार करे। एटलीस्ट कांगलेपक में वैसा होता था और सानाटोम्बी में ये क्वालिटी भरपूर थी, इसीलिए ये केपेबल थी रानी बनने के लिए। ओके, तो ये 5 इयर्स या उम्र कुछ बात नहीं है, आप जैसे हो, आपने जो क्वालिटीज है वो आपको एक राजा या एक रानी बना सकती है। तो दिस Ma'am, the story is interesting. यस,
This was interesting Ma'am, this and it story taught teaches us. us we care all things of plants and animals also. यस, अब हमारे यहाँ पे कोई राजा रानी तो है नहीं, देर इज नो किंग और क्वीन इन आर ओवर हियर। अभी इंडिया में ऐसा है नहीं, बहुत सी जगह पर है लेकिन ठीक है, अभी डिसाइड नहीं होता है ऐसे। लेकिन हम अपना पार्ट नहीं भूल सकते, हम दूसरों को प्यार करना, नेचर की केयर करना, सबको प्यार करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये सारे जो बेसिक क्वालिटी, अच्छी क्वालिटीज जो होती है, जो आपको हमारे स्कूल से भी मिलती है, सत्य साई स्कूल से, वो हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और कभी आप शायद राजा ना बने, ये साना टोम्बी की तरह रानी ना बने, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पे इसका रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा, इसका प्राइज आपको जरूर मिलेगा। ओके, तो हमें हमेशा साना टोम्बी की तरह बने रहना चाहिए। ये झूठ मूठ का ये बढ़ावा दिखाने के लिए जो पहले के दिनों में बहुत से राजा ऐसे करते थे, जो मृगया में जाते थे। आपने सुना होगा ये वर्ड, संस्कृत में हिंदी में दोनों में है मृगया, यानी जाते हैं जंगल में और जो निहत्या, जो बेचारे एनिमल्स होते थे, उनको मार डालते थे। क्यों मार डालते थे? खाने के लिए नहीं, सिर्फ अपना झूठ मूठ का अपना ब्रेवरी दिखाने के लिए कि मैं देखो। Entertainment मैम and दूसरों bravery. के सामने ब्रेव बनने के लिए। Yes, ma'am, bravery के लिए मैम दिखाना कि हमें कितना कुछ अच्छा है, also कि to दिखाने के लिए कि entertain. हम ये कर सकते अपने हैं। झूठे अपने झूठे ब्रेवरी को दिखाने के लिए कि देखो वाइल्ड एनिमल्स को भी मैंने हार बना दिया और शेर का शिकार किया, चीते का शिकार किया, हिरन का शिकार किया। बेचारे इतने मतलब निहत्या थे और उनको भी मारते थे। कई कई बार तो ऐसा होता था कि एक हाउंड्स जो कुत्ते होते हैं, just a minute, I will stop sharing, then I can see the screen properly. Yes, तो कभी कभी ऐसा होता था, जो हाउंड्स होते थे, हाउंड तरह के कुत्ते आपने सुने हैं, एक डॉग का ब्रीड होता है हाउंड, आपने सुना है? नो मैम, नो मैम। आपने वो लेसन में पढ़ा, हाउंड ऑफ द बास्करविल्स? नो मैम, मैम वो लेसन हमने भेजा था। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड फेमस लेसन है, बाद में पढ़ लेना। ओके, तो ऐसा था कि यहाँ पे एक तरह का कुत्ता भी हुआ करता था, हाउंड। वो क्या करता था, उसका मेन काम ऐसा था कि वो जो राजा या जो जमींदार ये ऐसे जाते थे ऐसे शिकार करने के लिए वाइल्ड एनिमल्स का, उनके साथ साथ जाते थे। और क्या है, कुत्तों को सूंघने की शक्ति बहुत स्ट्रांग है, तो वो सूंघते थे और वो ऐसे कुछ इंडिकेशंस दिखाते थे कि इस रास्ते से गया है वो जानवर। Yes, sir. तो उसी रास्ते से राजा या जमींदार जाते थे और उनके पीछे पीछे जाके उनके ट्रेल को ढूंढ के निकालते थे और उनको ऐसे मार देते थे, या तो बंदूक से या पुराने दिनों में ऐसे एरो से, बो और एरो से, धनुष से, ऐसे तीर से ऐसे मार देते थे। एंड इसी में उनको गर्व महसूस होती थी कि देखो हमने ऐसे जंगली जानवर को भी मार गिराया, तो हम कितने ब्रेव हैं, जो कि वो खुद भी नहीं कर पाए, एनिमल्स के हेल्प लेके उन्होंने ऐसा किया। Ma'am, today is good. We don't hurt any animal. Government made this rule, but many people hurt animals. अभी भी चोरी छुपे तो ये चलता ही है। अब हम ऐसे नहीं करते, राजाओं की तरह नहीं करते, क्योंकि परमिशन मिला है गवर्नमेंट से। थैंक गॉड, मैम मारते मारते एक दिन खत्म ही हो जाते। तो गवर्नमेंट मैम गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है कि कोई भी वो उसको मतलब वाइल्ड एनिमल को नहीं मारेंगे। मैम Yes. मैम फिर भी मारते हैं कोई Yes, लेकिन मैम हंटर और मैम अपना पोचर खाने मारते के हैं। लिए। यस, Yes, वो ma'am. बहुत से अभी भी देशों में ऐसे है, हमारे देश में भी सैडली ऐसा है कि अभी राजाएं ऐसे तो मारते नहीं हैं, लेकिन अभी भी उनके लेदर के लिए या उनके हॉर्न के लिए या कुछ भी टस्क, एनिमल्स के जो टस्क होते हैं, जो दांत होते हैं हाथी के, उनके लिए, आइवरी के लिए अभी भी उनको मारा जाता है। पोचर्स यानी जो इलीगल हंटर्स है, हंटर्स इलीगल, एंड पोचर। जो बिल्कुल भी कानून मतलब गैर कानूनी काम है, कानून के अंदर नहीं आते हैं, उनको जेल भी हो सकती है अगर पकड़े जाए तो।
तो ऐसे पोचर्स हमेशा अभी भी है, तो हर देश में, और ये ऐसे हंट करके उनके स्किन को, उनके टस्क को, उनके हॉर्न को ऐसे बाहर स्मगल करते हैं, बाहर भेज देते हैं गैर कानूनी तरीके से, ताकि उनकी जैकेट बन सके, उनका वो पर्स बन सके, जूते बन सके ऐसे। और अभी भी आप राजघराने में जाओगे ना, राजघराने में राजा के पास, जमींदार के पास, रॉयल ऐसे जाओगे, आपको स्टफ्ड एनिमल्स मिलेंगे, यानी खाल मिलेगी जानवर को, जो शायद इनके पूर्वज ने मारे होंगे, और बहुत ऐसे झूठी ऐसे ब्रेवरी दिखाते हैं कि हमने ये जानवर मारे हैं। फिर उनका सर भी ऐसे, सर का हिस्सा वो ऐसे ट्रॉफी की तरह सजा के रखते हैं, घर सजा के रखते हैं, और शान से सबको बोलते हैं कि हमने ये जानवर मारे हैं, शान से दिखाते हैं। Ma'am, in museums they are in museums are they are also नहीं skin of animals. म्यूजियम्स में तो ठीक है, क्योंकि म्यूजियम्स में जो नेचुरल तरीके से मरते हैं उनके खाल को निकाल के ऐसे रखते थे, जो नेचुरली उम्र की तरफ उम्र होते मर गए। लेकिन जो जमींदार जैसे होते थे, जो राजा ऐसे होते, तो वो तो मतलब ऐसे बिना बिफोर देयर एज ओनली वो किल कर देते थे, और जो कि बहुत गलत है। लेकिन वो ऐसे शान से उनको दिखाते थे, ऐसे वो बहुत अच्छी बहादुरी का काम उन्होंने किया। ओके मैम, मस्क डियर अपने मस्क के लिए मारा जाता था। यस, मस्क यानी हम जो हिंदी में कस्तूरी कहते हैं ना, कस्तूरी की, उससे बहुत अच्छी सेंट परफ्यूम बनती है। उनके पेट के जो हिस्सा होता है, पेट में फैट होता है, उसको कस्तूरी कहते हैं, कस्तूरी हिरन हम उनको कहते हैं, मस्क डियर। ओके, बहुत अच्छी खुशबू होती है उससे, वो फैट से। और वो फैट लेने के लिए, फैट इज नॉट पॉसिबल ऐसे वुल की तरह, तो हम इसको चाँच के नहीं ले सकते, उसको मार के उसके पेट से निकालनी पड़ेगी, तो ऐसे मार देते हैं। मैम अभी भी मारते हैं क्या? हम जब बहुत जल्द कर लेते हैं ये बात। प्लांट के अंदर जो मोती होते हैं उनसे नेकलेस एंड ज्वेलरीज बनती है ना? यस मैम अभी भी मारते हैं। मैम आइसलैंड के अंदर होते हैं। जस्ट अ मिनट, हम ये वर्ड मीनिंग्स कर लेते हैं। दीज आर द न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड नहीं पढ़ रही है, वो सिर्फ मीनिंग्स में बता दूंगी, देखो। एंड आई विल शेयर दिस इन व्हाट्सएप, आई विल शेयर दिस इन व्हाट्सएप। Dearly, but doubt we will write and send you again. Yes, dearly, very much, beloved, much loved, contest यानी competition, declared यानी announced, finish line यानी the line at the end of a race, excitement and excited condition, horseman, men or rider on horseback, mounted यानी घोड़े पर बैठना, be seated or riding on a horse or other animal. Spear, a long pole with sharp point at one end used for hunting or fighting. Spear यानी भाला, जो लंबी सी एक स्टिक रहती है, एक साइड पॉइंटेड रहती है, और हंटिंग और फाइटिंग के काम आता है। Next, hush, used to tell somebody to be quiet, stop talking or crying. यानी hush यानी चुप करना। Majestically, in a grand way. Majestically यानी grand way, यानी जो बरगद का पेड़ था वो बहुत सुंदर था, बहुत बड़ा था, और जैसे राजा की तरह शान से खड़ा था। That is called majestically. Pierced यानी prick करना। Motion यानी move। Unison, to utter together यानी एक साथ बोलना। Uprooted यानी to pull up a plant by the roots यानी जड़ों से निकालना, जो सनाटोमी ने किया था, जड़ों से निकालना किसी प्लांट को। यस, ट्रायम्फेंटली यानी लाइक अ विनर, ऐसे ट्रायम्फेंटली सर के ऊपर वो जैसे जीत गया कोई ट्रॉफी को लेके, ऐसे शान से बोलना। रेस्टलेस यानी अनेबल टू रिलैक्स और बी स्टिल यानी बहुत बेचैन होना।
रेस्ट नहीं कर पाना, इसको रेस्टलेस कहते हैं। क्रेन, टू स्ट्रेच द नेक फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू सी और हियर समथिंग, यानी ऐसे गर्दन को इधर उधर हिलाना और सामने करना ताकि हम किसी चीज को सुन या देख सकें। नेक्स्ट, थ्रोन। थ्रोन यानी हिंदी में हम जो सिंहासन कहते हैं उसको कहते हैं। द स्पेशल चेयर वेयर अ किंग और क्वीन सिट्स, यानी सिंहासन। फ्लैप्ड, टू मूव समथिंग अप एंड डाउन फ्रॉम साइड टू साइड। फ्लैप्ड यानी बर्ड्स जब अपने पंख झपकाते हैं उसको कहते हैं फ्लैप्ड। अप एंड डाउन करते, साइड में करते हैं, ऐसे हिलाते हैं। वर्डली, इन अ वर्ड मैनर, यानी चिंता होना। Whisper, to speak very quietly in somebody's ear, यानी कान में बोलना जो हम कहते हैं उसको कहते हैं whispered. Pecking, to eat or bite something with its beak. Pecking यानी birds जो करते हैं, यानी खाने को दाना चुगना, उसको कहते हैं pecking. दाना चुगना। Yes. Now ये चीजें आप कर लेना बुक में। Ma'am, new words. Ma'am, we made also make sentences. Yes, From new make words. sentences. Yes, make sentences. मैम आप कैसे अभी सेंड करेंगी? Yes, send करूंगी अभी। मैम जो हमारी वर्ड मीनिंग्स बनाना है उसके ही हमें सेंटेंसेस भी बनाना है। Yes, जो वर्ड मीनिंग्स है मैं एक बार फिर से व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगी, आप वर्ड मीनिंग्स लिख लेना, उनसे सेंटेंसेस बना लेना और ये 2 पेजेस करना। आज के लिए इतना होमवर्क है। मैम जो हमारे न्यू वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स जो है मैम, जैसे हमारे जो डिफिकल्ट वर्ड है वही हमारे हार्ड वर्ड भी रहेंगे। यस, यही है। ओके, और आप ये पेज और दूसरा पेज कर लेना। आज के लिए इतना। क्वेश्चन आंसर्स में मत जाओ, हम डिस्कस करेंगे उसके बाद। यहाँ पे देखना, जैसे जूम व्हेन द कार, बैंग व्हेन द डोर, पिप पॉप फ्लिपटी फ्लॉप, ऐसे क्लिक, ऐसे आप सेंटेंस क्या क्या लिख सकते हो इसके साथ में रिलेट करके, ऐसे आप लिखने की कोशिश करो। मैं चेक कर दूंगी, फिर मुझे सेंड करो। और नेक्स्ट वन, सॉरी दिस वन, फिल इन द ब्लैंक्स। ये पास्ट टेंस और कुछ नहीं, आपने ऑलरेडी करा है, ये आपने ऑलरेडी कर लिया है। ये आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये पास्ट टेंस में करना है। लिव्स, लिव्ड, गॉब्लिन, ये आपने ऑलरेडी टेंसेस किए हैं, वर्ब्स किए हैं, तो इसमें ये पास्ट टेंस में होगा। पास्ट टेंस में सारे आप फिलअप करके मुझे दिखा देना। This page and this page, 2 pages and word meanings and make sentences. ये 4 things आपको करना है। Okay, ma'am. Will you be able to do? Okay, ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. Yes, ma'am. So I will expect from you. आप homework दिखाओगे मुझे, because this is coming for exam, you know. This can come for exam. So let us end the class today. Our time is up. We will end with Shanti Path. Shanti, Shanti. Hi, Ramchandra. Thank you, ma'am. Ma'am, this is